Good evening, dear students. Good evening, everyone. Dear student, in this video, I'm going to discuss about square root of a rational number. See, we all are aware what is a rational number. Rational number is a number which can be written in the form of P upon Q. Means a number which is in the form like numerator upon denominator, right? For example, if we talk about 324 upon 361, so this is a kind of rational number and we are to find its square root. Right? So how to find its square root? See, there are so many methods, like we can do long division, we can go for prime factorization. So it's up to you which method is your method you are applying to solve the sum. But preferably, if you are having smaller number, you should go for the prime factorization. It's easy. You can do also long division method, but in case of greater number, go for the long division method as it is more convenient to find square root. अदरवाइज वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, और समटाइम्स हमें प्रॉपर फैक्टर्स नहीं मिल पा रहे होते हैं लॉन्ग जो ग्रेटर नंबर है उस केस में, और आपको दिक्कत आ सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. Suppose we are going to find the square root of a rational number. Dear students, recall the property which we studied in previous class. If you are having square root of a rational number, it can be written like this: square root of a and square root of b, right? So if we are having a rational number written like this, it means we can find square root of 324 and 361 individually. It can be written like this, right? Now you are to solve this. So first of all, to find the square root of 324, so you can find its factorization. So this is you can see the ones digit is 4. तो अभी 2 से start कर देते हैं. 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 से जाएगा. See, it is prime factorization, means we are to use only prime numbers. Some students commit a mistake, they use, suppose यहाँ पे 81 था, वो 9 से start कर देंगे division. That will be wrong, because prime factorization means use of prime factors, prime numbers, right? So this way you are to find the prime factorization. You can see the prime factors of 324 is equals to 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3. So you have to make pairs. Next step में हम 324 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो यहाँ पे आप फैक्टर्स में ये नंबर स्क्वायर रूट में लिख सकते हो. 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3. So यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा? 2 into 3 into 3, that is 3 2 6 3 18. अब एक चीज और, जिन बच्चों ने, जैसे मैंने आपको क्लास में बोला था कि आपको 50 नंबर्स के स्क्वायर्स याद करने हैं, तो जिन बच्चों को तो डायरेक्टली याद है कि 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो वो डायरेक्टली 324 को मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ. आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे 18 into 18, राइट? ऐसे ही आपको 361 का भी अगर पता होता कि जैसे 19 का, ये 361 बेटा किसका होता है? 19 का स्क्वायर, राइट? तो 19 into 19. अब बच्चों यहाँ पे मैंने 324 का तो निकाल दिया. ये मैंने आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ कि लाइक अगर आपको सीधे फैक्टर्स पता है कि 361 किसका स्क्वायर है, इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. अदरवाइज गो फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड यू कैन फाइंड द 324, या आपका स्क्वायर रूट आ गया 18. अब आप क्या होना था, अगर आप 361 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठते, आप 2 से तो होना ही नहीं था, ऑड नंबर है, 3 से करते नहीं होना था, 4 5 6 ऐसे ऐसे आपको कहाँ पे जाना था? 19 पे. फिर 19 पे ये सॉल्व होना था. 19 आप इसको सॉल्व कीजिए. नंबर है आपके पास 361, तो यहाँ पे आप इसको 19 जा आना था आपके पास 361 और 19 1 जा. तो इस वे में 361 के जो आपके पास फैक्टर्स आने थे 19 into 19, और इसका आंसर आ जाना था 19.
अब बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि कई बच्चे क्या करने था, उनसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होनी थी 361 की, यहाँ पे उन्होंने जैसे वो ने करने लगना था तो उनको पता नहीं चला था 9 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, तो सम स्टूडेंट्स गिव अप, वो छोड़ देते हैं, बिगिनिंग में ही छोड़ देते हैं कि नहीं हो रहा। तो बेटा उसके दो सोल्यूशन है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है लॉन्ग डिवीजन से करो, अदरवाइज जो मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि आपको स्क्वायर्स याद करने हैं फर्स्ट 50 नंबर्स के, उससे आपकी बेटा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको पता चल चुके हैं कि फैक्टर्स स्क्वायर रूट क्या आ गया है, तो आंसर यहाँ पे मैं लिख रही हूं, इसका आ जाएगा 18/19, तो ये है स्क्वायर रूट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट square root of decimal numbers. If you want I can do some more example on it. थोड़ी सी हम और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें आपके पास एक नंबर मैं ले रही हूं, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5625 डिवाइडेड बाय 441, राइट। सी स्टूडेंट्स, आपको इंडिविजुअली 5625 एंड 441 का स्क्वायर रूट निकालना। अगेन इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स वेदर यू गो फॉर लॉन्ग डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 441 का तो बेटा सभी को पता है, ये किस पे जाएगा, 21 जो होता है दैट इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब एक इनको याद है जिन्होंने स्क्वायर्स याद करे हैं अप टू 50, उनके लिए वो इजी है, और जिन्होंने याद नहीं करे हैं व्हाट यू दे आर टू डू, उनको 441 की अलग से फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे अभी ये 1 जो है आपका क्या है, ऑड नंबर, तो चलिए इसको करते हैं। 3 1s are 3, राइट, 4 3s are 12 और 7 3s are 21। नेक्स्ट फिर 3 पे जाएगा, 3 4s are 12, 9 3s are 27। अब 7 7s are 49 और 7 1s are 7। तो यू कैन सी कि 441 स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं आप लोगों ने, तो यू कैन सी ये क्या आ गया 3 and 7। तो इसकी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन से भी अगर निकालें तो क्या आ रहा है इसका स्क्वायर रूट 21। अब आपको 5625 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, वो कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकालना है, इट्स अप टू यू। आई एम डूइंग हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन एज द नंबर इज 5, तो पहले मैं 3 पे ट्राई करती हूँ। 3 1s are 3, तो 2 बच गया, एंड उसके बाद 8 3s are 24, तो 2 बच गए, 7 2s are 21 एंड 5 3s are 15। नेक्स्ट अगेन 3 6s are 18, 3 2s are 6, 3 5s are 15। नेक्स्ट ये अब देखिए ये 5 पे जाएगा, 5 1s are 5, 5 2s are, तो इसके फैक्टर्स अब आ चुके हैं, यस। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्या फैक्टर्स हैं, पेयर्स बना के लिखोगे तो इजी रहता है, लिखने में मिस्टेक नहीं आती है। और नेक्स्ट आ रहा है क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 into 5 into 5, तो ये हम लाइन नहीं लिखेंगे, राइट। इसको मैं इरेज कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया है। अब बेटा देखिए क्या इसका बन गया 75/21, तो दिस इज अ स्क्वायर रूट। तो दिस वे आपको रैशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। अभी इसी के बेस्ड आपके पास यहाँ पे जो आपकी मेरे पास वर्कशीट है, वर्कशीट में आपको जो नंबर दिए हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपके पास नंबर आ जाता है, सपोज आई एम टेकिंग मिक्स जो है आपका नंबर ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ये वर्कशीट 5 है और उसका फर्स्ट पार्ट का 7th पार्ट, तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है 23, राइट, 394 डिवाइडेड बाय 729। तो बेटा इसमें कुछ घबराना नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। अगर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या रूल होता है
इसको इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जहां पे जो आंसर आता है आपका उसको इसमें क्या करते हैं, ऐड। जो यहाँ पे आंसर आता है उसको इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो 729 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आंसर आ रहा है उसको 394 में ऐड कर दीजिएगा, राइट। अब जब ऐड कर दिया आपने तो जो आपका आंसर बन रहा है इट इज 17,161 डिवाइडेड बाय 729। अब बेटा आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे। अब 17,161 का मैंने क्लास में ये करवाया हुआ है। अगर इसका आप क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके लिए इजी नहीं होगा, लॉन्ग डिवीजन से करिएगा। लॉन्ग डिवीजन से आपके पास आंसर बड़ा एक्यूरेटली आ जाएगा, ठीक है जी। और ऐसे ही आपको 729 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। अगेन आई एम सेइंग जो मेथड आपको चूज करना है। तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में आपको पता है क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं फ्रॉम द यूनिट्स डिजिट। यूनिट डिजिट से पेयरिंग स्टार्ट होती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, तो आप पेयरिंग देख सकते हैं 1 से जाएगा। नंबर कैसे चूज करते हैं मैं साथ साथ में बता रही हूँ। वैसा नंबर जो उसके इक्वल या नियरेस्ट है, तो 1 1 जा 1, तो माइनस किया, अब ये 0 हो गया। नेक्स्ट नंबर कौन सा डाउन आएगा, 71, तो 1 का यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 2। अब 2 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी के साथ, मतलब जो नंबर यहाँ पे ले रहे हैं उसको पूरे जो नंबर बनता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें और 71 या उसके नियरेस्ट आए। सी अगर मैं 1 लेती हूँ तो 21 हो जाएगा, 2 लेती हूँ तो 44 हो जाएगा, 3 लेती हूँ तो 69। तो दिस इज नियरेस्ट वन, तो यहाँ पे आएगा 3 पे, तो आ जाएगा 69। तो 2 और ऊपर से हम एक पेयर लाएंगे, कौन सा, 61। अब 13 का डबल क्या होता है, 2 26। अब यहाँ पे 2 6 के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 को। सीधा से विजिबल है कि 261 तभी बनेगा। तो दिस वे यू गॉट जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ गया आपके पास, 131। एंड 729 का करोगे, 729 की भी मैं यहीं पे लॉन्ग डिवीजन कर लेती हूँ, इजी हो जाएगा। 2 2 जा 4, 7, और यहाँ पे 2 का डबल क्या होता है, 4। अब इसको 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा 329। तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट कितना आ गया, 131/27। सो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसी रैशनल नंबर का, उसमें चाहे आपको सिंपल रैशनल नंबर दिया है या मिक्स्ड नंबर दिया है, आपको सिंपल रैशनल नंबर दिया है, आपको न्यूमरेटर का अलग से निकालना है, स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का अलग से निकालना है। अगेन कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यू कैन यूज लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड स्क्वायर रूट, और यू कैन यूज prime factorization method to find square root. In case of mixed fraction, convert it in a fraction. तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करके। अगेन जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है तो न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर रूट यू आर टू फाइंड, एंड यू आर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर अगेन, एंड दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। कीप वॉचिंग द वीडियो प्लीज। इसको अच्छे से रिवाइज किया करो, मैथड्स की प्रैक्टिस किया करो। थैंक यू सो मच।